اردو ورلڈ وائز میں خوشامدید۔ اگر آپ کو میری ویڈیو اچھی لگے تو اس کو لائک اور چینل کو ضرور سبسکرائب کر دیجیے گا اور ساتھ ہی بیل آئیکن کے بٹن پر کلک کر دیجیے گا تاکہ آپ کو میری ویڈیوز پر وقت مل سکیں۔ میں اپنے دکھ کو چھپانے کے لیے 2 لیٹر سے بھری ہوئی پانی کی پوری بوتل اپنے اوپر انڈیل چکی تھی۔ ایسے میں میرے چہرے پر گرتا ہوا پانی اور اس کے ساتھ میری آنکھوں سے بہنے والے آنسو بھی مل چکے تھے، جبکہ میرے ساتھ میری کلاس میں بیٹھی ہوئی تمام لڑکیاں مجھے دیکھ دیکھ کر ہنسنے لگی اور ہر طرف سے میرے مذاق اڑنے کی آوازیں آنے لگی۔ یہ کہانی سچی ہے، البتہ کہانی میں بتائے گئے نام فرضی ہیں تاکہ کسی کی دل آزاری نہ ہو۔ میرا نام آمنہ ہے، میں تب اسکول میں پڑھتی تھی۔ میری نانی ایک ڈاکٹر تھی اور وہ کلینک چلا رہی تھی۔ تب ایک روز وہ میری والدہ سے پریشان ہوتے ہوئے کہنے لگی، آج کلینک میں ایک لڑکی آئی تھی، 16 سال کے لگ بھگ ہوگی، اسے ڈائبٹیز کی بیماری ہے۔ مجھے تو اس کو دیکھ دیکھ کر بہت ترس آ رہا تھا۔ یہ ان دنوں کی بات ہے جب ڈائبٹیز یعنی شوگر کا مرض اتنا عام نہیں تھا، مگر وہ سچ میں ہی شاید اتنی جوان تھی جس کی وجہ سے نانی کو اس پر بہت ترس آ رہا تھا۔ میں بھی حیرانگی سے نانی سے پوچھنے لگی، نانی اسے کیا ہوا تھا؟ میری نانی حیرانگی سے میری طرف دیکھنے لگی اور پھر میری دلچسپی کو سمجھتے ہوئے مجھ سے کہنے لگی، وہ بہت کمزور تھی، اسے بار بار پیاس لگتی تھی، بار بار واش روم جانا پڑتا تھا، اور تو اور اسے تھکاوٹ بھی بہت محسوس ہوتی تھی۔ وہ اتنی زیادہ کمزور تھی مگر اسے بھوک بہت زیادہ لگتی تھی اور وہ کھانا بھی بہت کھاتی تھی۔ میں نانی کی بات سنتے ہی بے اختیار بولی، نانی ایسا سب تو مجھے بھی محسوس ہوتا ہے، سچ میں ہی مجھے بھوک بہت زیادہ لگتی تھی اور میں جانوروں کی طرح ہر کھانے والی چیز پر ٹوٹ پڑتی تھی۔ ہر وقت میرا حلق خشک رہتا تھا اور 1.5 لیٹر پانی پی لیتی تھی، مگر پیاس تھی کہ بجھنے کا نام نہیں لیتی تھی۔ نانی غصے میں مجھے تھپڑ لگاتے ہوئے کہنے لگی، آئندہ سے ایسی بات مت کرنا۔ میں تب میٹرک میں تھی جب مجھے بار بار ہر کلاس کے بعد واش روم جانے کی ضرورت پڑتی تھی۔ کبھی ایسا ہوتا کہ مجھے کلاس کے بیچ میں ہی واش روم جانا پڑتا۔ ایسے میں ٹیچرز بہت حیران ہو جاتی کیونکہ میں بہت لائق اسٹوڈنٹ تھی۔ ان کو اس بات کا تو یقین تھا کہ میں پڑھائی کی وجہ سے بار بار بہانہ بنا کر باتھ روم نہیں جاتی، مگر وہ بھی حیران ہوتی تھی کہ میں اس قدر بار بار کلاس چھوڑ کر واش روم کیوں چلی جاتی ہوں۔ میرے والد آرمی میں تھے جبکہ ہم لوگ نانی کے پاس ہی رہتے تھے کیونکہ میری والدہ ڈاکٹر تھیں اور وہ وہیں نانی کے پاس ہی سرکاری نوکری کرتی تھی، جبکہ والد وہ لاہور میں رہتے تھے۔ نانی کا گھر ملتان میں تھا۔ اسکول نانی کے گھر سے کافی دور تھا، اگرچہ آرمی کی ایک گاڑی ہمیں روزانہ ہی اسکول سے لے کر آتی جاتی تھی۔ ایسے میں 1.5 گھنٹے کی مسافت طے کرنا بہت مشکل لگتا تھا۔ نانی کے گھر سے اسکول جانا بالکل ایسے ہی تھا جیسے محاذ پر جانا ہے۔ کئی بار تو مجھے گاڑی رکوا کر قریب موجود کسی گھر میں جا کر باتھ روم جانا پڑتا تھا۔ ایسے میں میرا لوگ مذاق اڑانے لگے اور کلاس میں موجود لڑکیاں وہ بھی میری پیٹھ پیچھے طرح طرح کی باتیں بنانے لگی، یہ کہتے ہوئے، جانے اسے کیا ہو گیا ہے، ایسے کیوں کرتی ہے، بار بار باتھ روم کیوں جاتی ہے۔ عید پر میں نے بہت زیادہ کھانا کھایا جس میں گھر کی بنی ہوئی چیزوں کے علاوہ میٹھی چیزیں اور بیکری کی چیزیں بھی تھیں۔ پھر اس کے بعد چند ہی دنوں میں میری سالگرہ بھی آ گئی، تب بھی میں نے جی بھر کر کھایا، یہاں تک کہ میں کیک کے 8 پیس کھا گئی۔ اسی روز مجھے اپنے گھر لاہور سے سیدھا اپنی نانی کے گھر ملتان بذریعہ ہوائی جہاز جانا تھا۔ میں نے اپنی بڑی بہن کے ساتھ لاہور سے ملتان جانا تھا۔ مہربانی فرما کر اپنی سیٹ بیلٹس باندھ لے، جہاز تھوڑی دیر میں ہی پرواز بھرنے والا ہے۔ یہ الفاظ جو ہی میرے کانوں میں پڑے مجھے اپنا دم گھٹتا محسوس ہوا، اور جو ہی جہاز ٹیک آف کیا
तकरीबन 5 मिनट बाद मेरी हालत गैर होने लगी। तब मैं अल्लाह से दुआएं करने लगी, या अल्लाह मुझे अभी नहीं मरना। तभी जहाज में एक अनाउंसमेंट हुई, मुल्तान का मौसम खराब है, जिसकी वजह से हम दोबारा से लैंड कर रहे हैं। इसके बाद मुझे कोई होश नहीं रहा। जब मेरी आंख खुली तो मैं अस्पताल में थी। मैं बेहोश हो गई थी और फिर मेरी बहन ने एयरपोर्ट में उतरते ही मेरे वालिदैन को कॉल की और उन्हें मेरी हालत के बारे में बतलाया। मेरे वालिदैन वहीं पर आ गए और मुझे अस्पताल में ले आए, जहां पर डॉक्टर ने कहा मैंने कुछ गलत खा लिया है, जिसकी वजह से मैदे का मसला बन गया है और तेजाबियत भी इस कदर बढ़ गई है। उन्होंने मुझे मैदे की दवाई दे दी और तब मुझसे ठीक से खड़ा भी नहीं हुआ जा रहा था। थकावट भी इंतहा को थी। तब डॉक्टर ने मुझे ग्लूकोज की ड्रिप लगा दी। ऐसे में मैं कोमे में चली गई। मेरा शुगर लेवल बहुत ज्यादा हाई हो चुका था। 700 के करीब मेरा शुगर लेवल बढ़ गया था। सबको मालूम पड़ा कि मुझे टाइप 1 डायबिटीज का मर्ज लाहक है, जबकि मेरी वालिदा खुद भी डॉक्टर थी और अस्पताल में जिस बेड पर मैं लेटी हुई थी वहां पर मेरी वालिदा के कई जानने वाले और भी डॉक्टर्स थे। मेरी आंखें अंदर को दंस गई थी और हाथ पांव मुड़ चुके थे। मेरी हालत को देखते हुए मेरी वालिदा को डॉक्टर ने जवाब दे दिया और मेरी वालिदा खुद बताती हैं कि वो भी मेरी जिंदगी के हवाले से उम्मीद छोड़ चुकी थी, क्योंकि मेरी हालत को देखते हुए यही लग रहा था कि मैं अभी कुछ ही मिनटों की मेहमान हूँ। तभी उनमें से किसी ने मेरी वालिदा से कहा, तुम इसकी दोबारा से होश में आने की दुआ भी मत करो, क्योंकि अगर ये होश में आ गई और जिंदा भी रही, इसकी जिंदगी बहुत ही मुश्किल हो जाएगी। तब से मुझे इंसुलिन लगना शुरू हो गई। जो ही मैं घर में आई, रोजाना ही शाम को लोग मेरी खैरियत मतलूब नहीं करने आते थे, बल्कि वो तो ताजियत करने आते थे। सब यही सोचते थे मैं मर चुकी हूँ। यानी मेरी हालत इस कदर खराब थी कि लोग ना ही मुझे और ना ही मेरे वालिदैन को मेरी तबीयत के हवाले से कोई हिम्मत दिलाते या उम्मीद दिलाते थे, बल्कि उल्टा अफसोस करते और यहाँ तक कह जाते, अल्लाह इसकी तकलीफ दूर करे और इसे अपने पास बुलवा ले। दिन यूं ही गुजरते रहे और आहिस्ता आहिस्ता मैं नॉर्मल रूटीन में आ गई। मगर ऐसे में इंसुलिन लेना मेरे लिए बहुत जरूरी था, जबकि मैं तब स्कूल में ही पढ़ती थी। लोग मेरे वालिदैन से कहने लगे इसकी जल्द से जल्द शादी कर दें, और जहां भी शादी करें उन लोगों को इसकी बीमारी के बारे में बिल्कुल भी मत बताइएगा, वरना इसे कोई शादी नहीं करेगा। और हाँ, अगर इसकी शादी नहीं भी करनी तो फिर भी इसकी बीमारी के बारे में किसी को भी मत बताइएगा, वरना लोग इसकी बहनों से भी शादी नहीं करेंगे। इस तरह लोगों की बातें सुन सुनकर मैं जिस्मानी तौर पर तो बीमार थी, ज़हनी तौर पर भी बीमार रहने लगी। मुझे अपनी जिंदगी में हर तरफ अंधेरा ही अंधेरा नजर आ रहा था। मैं बहुत मायूस रहने लगी थी। मगर ऐसे में मेरे वालिदैन ने मेरा पूरा साथ दिया। तभी मैंने सोचा, जो इंसान आपको आपकी कमजोरी के साथ कबूल करे वही सबसे बेहतर शरीके हयात साबित हो सकता है। एक रोज मैं यूं ही अपने कमरे में उदास बैठी हुई थी। वो रात का वक्त था, जबकि मुझे नींद नहीं आ रही थी। तभी नानी मेरे पास आई और मुझसे कहने लगी, क्या बात है, मेरी बेटी यूं उदास क्यों बैठी है? जबकि वो अच्छे से जानती थी कि मैं क्या सोच रही होंगी। तभी वो मेरा हाथ पकड़कर मुझे कमरे की खिड़की के पास ले आई। खिड़की से पर्दे हटाकर मुझे ऊपर आसमान की तरफ देखने के लिए कहने लगी, जहां से चमकते हुए सितारे चांद की चांदनी को मजीद बढ़ा रहे थे। तभी नानी मुझसे कहने लगी, अगर तुम चाहती हो तुम्हारी जिंदगी बिल्कुल पहले जैसी हो जाए और तुम्हें
कोई गम ना हो तो तुम्हें अल्लाह पर यकीन रखना होगा। अगर तुम अल्लाह पर पूरा यकीन रखोगी तो जितने ये सितारे आसमान पर चमक रहे हैं इतनी ही खुशियां तुम्हारी जिंदगी में होंगी। दिलो दिमाग में नानी की बात बैठ गई और मैं जब भी उदास होती फौरन से अपने कमरे की खिड़की के करीब जाकर रात के वक्त खड़ी हो जाती और काफी देर तक वहीं खड़े होकर आसमान पर चमकते हुए सितारों को देखती रहती, इस उम्मीद के साथ कि मेरी जिंदगी में भी इतनी ही खुशियां आ जाएंगी। जाने क्यों मुझे ऐसे लगता था जैसे रात के आखिरी पहर जब कभी मैं उस खिड़की के पास खड़ी होकर आसमान की तरफ देखकर अपनी दिल ही दिल में अल्लाह से बातें करती थी, जैसे अल्लाह मेरी तब बातें फौरन से सुन लेते थे। वक्त यूं ही गुजरता रहा और मेरी वालिदा चूंकि डॉक्टर थी, उन्होंने मेरा हर लिहाज से बहुत ज्यादा ख्याल रखा। जहाँ पर मेरे खाने पीने की हर चीज का ध्यान रखते हुए वो मेरी टीचर्स को भी मेरे बारे में बता चुकी थी, यानी मुझे स्कूल में वो किस तरह हैंडल करेंगी। तभी मेरे वालिदैन ने मेरी परवरिश बेटों की तरह की, यानी एक तरह से वो भी मेरी शादी के हवाले से नाउमीद हो गए थे। लिहाजा उन्होंने मुझे खूब पढ़ाया और मुझे ज़हनी तौर पर तैयार कर दिया कि मैंने खुद से कमाकर खुद का बोझ उठाना है। इस दुनिया में एक लड़के की तरह मुझे जीना था। ऐसा नहीं था कि वो मुझे मेरे मुस्तकबिल में पैसा नहीं दे सकते थे, मगर वो मुझे इस दुनिया में सही मानों में जीना सिखा रहे थे, क्योंकि माशरे की तरह उनके ज़हन में भी ये बात बैठ चुकी थी। अगर मेरी शादी हो भी गई तो मेरे बच्चे नहीं होंगे, क्योंकि टाइप 1 की डायबिटीज मरीजा के बच्चे नहीं हो सकते। तब मेरी वालिदा मुझे अक्सर दिलासा दे देती, ये कहते हुए, कोई बात नहीं बेटी, जरूरी नहीं कि इस दुनिया में हर एक की शादी हो। मगर मैं जानती हूँ वो किस कदर तकलीफ में ये अल्फाज कहती थी। जाहिर सी बात है वो एक माँ थी और हर माँ अपनी बेटी को दुल्हन बना हुआ देखना चाहती है। वक्त का पहिया यूं ही चलता रहा और स्कूल से कॉलेज और कॉलेज से यूनिवर्सिटी में पहुंच गई। तब मैं अपनी क्लासेस में मसरूफ थी। तब ही मेरी अजहर से मुलाकात हुई। मैंने तब अपनी क्लास में कोई प्रेजेंटेशन दी थी जिसको देखकर वो बहुत मुतासिर हुआ था और अगले ही रोज वो मेरे पास आया और मुझे आकर उसने शादी का प्रपोजल दे दिया, जबकि मैं उसके इस तरह प्रपोजल देने पर हैरान हो गई। वो दिखने में अच्छा था और सबसे बढ़कर बहुत शरीफ भी था, मगर मैंने उससे शादी करने से इनकार कर दिया। पहले तो मैं उसे यूं ही टालती रही, फिर एक रोज उसने मुझसे बहुत इस्रार किया। तब मैंने उसे कहा मुझे डायबिटीज है। वो ये बात सुनते ही मुस्कुराने लगा। मैं उसकी मुस्कुराहट को देखकर उससे कहने लगी, हाँ मुझे सच में ही डायबिटीज है। फिर वो मुझसे पूछने लगा, डायबिटीज में मरीज को क्या होता है। मैंने उसे सारा बताया। बार बार बाथरूम जाना पड़ता है, प्यास लगती है, भूख लगती है, कमजोरी होती है और किसी टाइम भी कोई इमरजेंसी हो सकती है। मेरे इतना कुछ बताने के बाद भी अजहर मुझसे कहने लगा, तो कोई बात नहीं। मैंने फिर अजहर से कहा, ठीक है आज शाम में हमारे घर आ जाना। तब मैंने उसे अपने घर का एड्रेस दिया और वो हमारे घर पहुंच गया। तभी मेरे वालिदैन ने तकरीबन 2 घंटे तक उससे बात की। उसे यहाँ तक कहा कि मैं कभी माँ नहीं बन सकती। तब उसने पूरे एतमाद होते हुए मेरे वालिदैन से सिर्फ एक ही बात कही, ये तो अल्लाह की मर्जी है, जिसको चाहे औलाद दे और जिसको चाहे ना दे, मुझे बस आमिना से शादी करनी है। उसके अलावा मेरे हवाले से अगर आप कोई तसल्ली करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। वो अच्छे खानदान से था और खुद भी अच्छा लड़का था, इसलिए मेरी उससे शादी हो गई। शादी के बाद हमारी जिंदगी में मौजा हुआ। बेशक अल्लाह किसी को भी ना उम्मीद नहीं करता। मैं उम्मीद से थी। ये जानते ही मेरी आंखों से आंसू छलकने लगे और अजहर मेरे आंसू पोंछते हुए खुशी से कहने लगे, बहुत रो लिया तुमने, अब मैं तुम्हें कभी भी रोने नहीं दूंगा। और तभी अजहर ने मेरी वालिदा को कॉल की और कहने लगा,
आपकी मेडिकल साइंस गलत साबित हो गई, आप नानी बनने वाली हैं। आखिर में बस मैं आप लोगों से इतना ही कहूंगी, किसी भी इंसान को चाहे वो लड़का हो या लड़की, उसे जो भी मर्ज लाहक होता है उसमें उस इंसान का कोई इख्तियार नहीं होता। इख्तियार होता है तो हमारा, जो हम अल्लाह की तरफ से दी हुई उस इंसान की आजमाइश को सजा या गुनाह बनाकर उसके दिलो दिमाग में ये बात बिठाते हुए उसे ज़हनी अजियत में मुब्तला कर देते हैं। अल्लाह हम सबको आजमाइश से बचाए, आमीन। आपकी कीमती वक्त का शुक्रिया। अल्लाह हाफिज।